Rahim. So in the last lecture we were discussing about the block diagram. So in today's lecture we will continue with the explanation of block diagram, and we will solve different examples with the help of different rules using the block diagram simplification. So the preview of the last lecture, we have started with introduction to block diagram. What is a block diagram and what are the advantages of block diagram, and different notations like summing point and the branch points, how they are used in the block diagram. After that, we have seen an example in which the three different inputs are coming and they are going to be added, and ultimately we have the output x of 3. So the next point was the canonical form of a feedback control system. Actually, we have find out the closed loop transfer function for feedback control system. So what we have derived that this is the basic equation of closed loop transfer function of the control ratio, or it is also called as the output of the closed loop transfer function of the system. So we have derived this equation: C of S R of S is equal to G of S divided by 1 plus negative G of S H of S. Then what is the characteristic equation? This is the numerator part. This is the numerator part of your equation, and this is the denominator part. If we put the denominator part of this transfer function equal to 0, then this equation is called as the characteristic equation of the system. Like this, if we put 1 plus negative g of s h of s is equal to 0, then this equation is called as the characteristic equation of closed loop system. So why we are using the plus sign or negative sign? Because the feedback may be the negative or feedback may be the positive. Like this, if we look upon at this diagram, here the feedback is negative. Okay, this is the negative feedback system, and if the feedback is also with a positive sign, then this is called as the positive feedback system. So we can say we have the two types of feedback systems, like negative and the positive. If there is feedback with a negative sign, then this is called as a negative feedback system, and if the feedback is coming with a positive sign, then the feedback system is called as the positive feedback system. So that's why we have used plus negative both signs. And we derived the whole equation like C of S is equal to, here the output is equal to, C of S is equal to, C of S is equal to G of S multiplied by E of S. Okay, for this
block. For this block, the output is C of S, and it is equal to input multiplied by the transfer function. This is the input E of S, and this is the transfer function G of S. So the output is equal to E of S multiplied by G of S. And for this block, the input is C of S, whereas the output is B of S. So we can say that the B of S, sorry, we can write here, B of S is equal to C of S multiplied by H of S. And for this summing point, we can write here output E of S is equal to R of S minus B of S. So we can substitute here the value of B of S, and ultimately we can replace this E of S with this equation. And finally, when we will simplify all these equations after substitution, then what we will get, ultimately we will get this equation. Okay, after the substitution, this is the substitution of the value of B of S and E of S ultimately in this equation. लास्ट लेक्चर में ये जो डेरिवेशन है ये कम्प्लीटली हम लोगों ने देखी थी, इसको मैंने रिवाइज किया बाय यूजिंग दैट इक्वेशंस एंड सॉल्विंग द ब्लॉक्स. So in this equation, if we we can see that C of S, and if we move this part towards the left side, then C of S plus H of S C of S. ओके, ये इस साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, एंड हेयर व्हाट वी विल गेट G of S R of S. ओके ओके, इस इक्वेशन में, इन द अबव इक्वेशन, C of S को हम लोग कॉमन ले लेंगे, एंड व्हाट वी विल गेट, सॉरी हेयर यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी कर दिया, इसको मैं दोबारा से इसको रेस करके करती हूँ. It is difficult to solve the mathematical equations here in online classes, but I'm trying my best कि आप लोगों को मैक्सिमम समझ आ सके, क्योंकि दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट और हम लोगों को ज़्यादा काम न्यूमेरिकल बेस्ड ही करना है. इसको ज़रा एक्सपैंड कर लेते हैं. G of S R of S मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस साइन जी, क्योंकि G of S जो है ये ब्रैकेट से आउटसाइड, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, माइनस G of S H of S एंड C of S. ओके, अब ये ठीक हो गया. C of S, अब इसको हम लोग ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, C of S प्लस G of S H of S C of S is equal to G of S R of S. Okay, now we will take the common C of S, so कॉमन ले लेंगे, दैट व्हाट वी विल गेट, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस G of S H of S, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास राइट साइड पे G of S R of S. अब हम लोगों ने रेशियो क्या लेना है, C of S डिवाइडेड बाय G of S. इसका मतलब ये है कि ये वाला इसके यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा G of S, क्योंकि R of S ये वाला जो है ये इसके डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो डिवाइड हो जाएगा. G of S डिवाइडेड बाय 1 प्लस G of S H of S. ठीक है, तो इसको हमने अल्टीमेटली क्या कर लिया, कंक्लूड कर लिया कि अगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो उसमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, दैट इज द रेशियो ऑफ C of S डिवाइडेड बाय R of S. और इस इक्वेशन को मैंने आपको बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ भी हमें फीडबैक के लिए सॉल्व करना है
we need to use this equation. So the closed loop transfer function क्या वैल्यू होगी इसकी, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाई एच ऑफ एस। अच्छा, वहां पे एक नेगेटिव साइन की मैं बात कर रही थी। अब आप लोगों ने ये मुझे बताना है, इसको सब लोगों ने सॉल्व करना है एंड यू विल शो मी द क्लास इफ द इनपुट इज आर ऑफ एस। और बाकी मतलब अगर मैं इसको इसके बजाय कि मैं यहाँ पे इसको अगेन रीड्रॉ करूँ डायग्राम को, इसी डायग्राम को आप लोग देख लें। आप लोगों ने इन्हीं सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है इस डायग्राम के लिए, सेम फॉर दिस डायग्राम, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या करनी है आप लोगों ने, अब इस नेगेटिव साइन की जगह पे पॉजिटिव से रिप्लेस कर देना आप लोगों ने। देन आप लोग सॉल्व करेंगे इस पूरी की पूरी डायग्राम को और इस पूरी पूरी डेरिवेशन को। लाइक आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। और आप लोग ये कि आप लोगों की ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट नहीं छोटी सी एक्टिविटी है कि आप लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखना है और यही सारी इक्वेशन को यूज करते हुए अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। इसकी वैल्यू आप लोगों ने जो मुझे बतानी है, सेम वही है, सिवाय एक रिप्लेसमेंट है और वो है साइन की, डेट इज द पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, तो ये किसी भी स्टूडेंट से मैं एक्टिविटी करवाऊंगी भी, आप लोगों ने जैसे ही लेक्चर साथ साथ उसको सुन रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं पॉइंट्स को, तो उस इस पॉइंट को भी साथ ही आप लोगों ने करना है और मैंने आप लोगों से ये पूछना है। तो हम लोगों ने देख लिया, एक तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स एंड फॉर द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, और इन दोनों के लिए डेरिवेशन आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म भी कहेंगे या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और फीडबैक सिस्टम। ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ये हम लोगों के पास जब वो आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि व्हाई वी आर यूजिंग हियर द प्लस साइन एंड नेगेटिव साइन। अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक। तो एक और हिंट भी आप लोगों को मिल गया कि अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो यहाँ पे साइन क्या रहा होगा, नेगेटिव। लेकिन आप लोगों ने ये पूरी इक्वेशन ड्राइव करके मुझे बता दी। एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल पुट कर देते हैं, डी डिनोमिनेटर पार्ट इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम। ओके, ये मैंने आप लोगों को एक दी थी असाइनमेंट कि आप लोगों ने ये छोटी सी एक्टिविटी करनी है कि डिफरेंट आपके पास इक्वेशंस हैं, डिफरेंट रेशियोज हैं, उनको आप लोगों ने इन इक्वेशंस को याद करना है। ये समझ लें, इनको याद करना है आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल आप लोगों से कहा जाए कि लाइक ये एग्जांपल है, इफ यू आर गिवन विद दिस एग्जांपल, तो आपसे ये कहा जाए कि ये आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम दी गई है, इसमें से आप ये सारे फीचर्स फाइंड आउट करें। कौन कौन से फीचर, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, कंट्रोल रेशियो, फीडबैक रेशियो, एरर रेशियो, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये 7 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि वो हम लोग यूज करते हैं फीड ब्लॉक डायग्राम के लिए। ठीक है, हमें पता है कि जो ये वाला पार्ट है, जो अच्छा एक दो तरह के आपके पास पाथ का भी डिस्कस किया है। एक तो आप लोगों ने देख लिया कि फीडबैक, फीडबैक कैसा होगा, जो कि बैकवर्ड आ रहा है आउटपुट से टुवर्ड्स इनपुट। और एक यहाँ पे डिस्कस किया, डेट इज अ फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का क्या मतलब है, जो सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है। अब ये दोनों तरह के वर्ड से खुद ही एक्सप्लेन हो जाएगा। एक चीज हम लोग यूज करते हैं फॉरवर्ड एंड सेकंड थिंग इज द बैकवर्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास फीड फॉरवर्ड है उसमें बैकवर्ड नहीं होता, उसमें एक ही एरो है जो ये बता रहा है कि ये सिर्फ आउटपुट की तरफ जा रहा है। तो ये वाली चीज है जो कि हमें सिर्फ बता रही है कि ये सिर्फ फीड फॉरवर्ड है,
मतलब फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड का कहीं इसमें वर्ड यूज हुआ। अब अगर हम लोग फीडबैक की बात करें तो फीडबैक इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैकवर्ड, ठीक है, मतलब जो आउटपुट से दोबारा इनपुट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इफ समवन आस्क फ्रॉम यू दैट व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो आप लोगों ने बताना है इसमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, बी ऑफ एस डिवाइडेड बाय ई ऑफ एस। मतलब यहाँ पे हमारे पास बी ऑफ एस होता है एंड दिस हेयर वी हैव द ई ऑफ एस, ठीक है। तो बी ऑफ एस डिवाइडेड बाय ई ऑफ एस का जो रेशियो है, यू मस्ट नो कि ये हमारे पास क्या फीचर होगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप TF भी अगर आप लिख दें दैट विल शो द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, बी ऑफ एस डिवाइडेड बाय ई ऑफ एस, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, आयशा, जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस। ठीक है, इसमें सिर्फ ये वाला ब्लॉक हमारे पास आ रहा है। तो ये बी ऑफ एस और ई एफ एस की जो रेशो है ये किसकी इक्वल है, जी ऑफ एस, मतलब इसमें सिर्फ ये वाला ब्लॉक आ रहा है, जी ऑफ एस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एच ऑफ एस के साथ। तो ये क्या होगा आपके पास, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सेकंड इज फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन ये बेसिकली क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय एरर, ठीक है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेशियो है, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई ई ऑफ एस। तो ये किसके इक्वल है, ऑब्वियसली ये किसके इक्वल है, जी ऑफ एस के इक्वल है। ओके, ये हम लोग पहले भी देखते चुके हैं, दैट इज द कंट्रोल रेशियो। और जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये एक ही चीज़ है आपके पास, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, कंट्रोल रेशियो एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये भी हम लोगों ने क्या देखा, क्या वैल्यू होती है फॉर नेगेटिव फीडबैक, यहाँ से पता चल जाएगा नेगेटिव, द फीडबैक इज विद द नेगेटिव साइन। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या यूज़ करनी है इक्वेशन, सी ऑफ एस आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय वन, क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, यस पॉजिटिव साइन, 1 plus g of s multiplied by h of s. This ratio c of s divided by r of s, it is called as the closed loop transfer function, or it is also called as the control ratio. Okay, next point is feedback ratio. Feedback ratio में क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे हमारे पास b of s है, here e of s, ठीक है। तो b of s डिवाइडेड बाय r of s, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रेशो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज फीडबैक रेशो, ठीक है। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जी ऑफ एस एच ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अच्छा, उसके बाद एरर रेशो किसके इक्वल है, ई ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। ये किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस, ठीक है। और ये वाली हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल टू 0 पुट कर दें, if the denominator part is equal to 0, then this is called as the characteristic equation of closed loop system. So these are the different parameters. First of all, क्या है हमारे पास, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सेकंड वन इज फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, कंट्रोल रेशियो, फीडबैक रेशियो, एरर रेशियो, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड देन इन द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम लोगों ने करना क्या है, द टास्क इज ये वाली इक्वेशन को यूज करते हुए आप लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे वहाँ से एग्जाम्पल्स आगे पीछे हैं कुछ, तो ये इसी को देख लेते हैं। तो व्हाट इज योर टास्क, यहाँ पे ये बता दिया कि जी ऑफ एस की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, ये जी ऑफ एस की जगह ये वाला फंक्शन आप लोगों ने पुट कर देना है, और एच ऑफ एस की जगह पे 0.1 की वैल्यू पुट कर देनी है। और ये यूज़ करते हुए आप लोगों ने ये सारे
इनकी वैल्यूज बतानी है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये ब्लॉक डायग्राम इज गिवन और इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आप लोगों ने जी ऑफ एस की जगह पे उसका ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे और एच ऑफ एस की जगह पे उसकी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे इन सारी की सारी इक्वेशंस में। तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी हमारे पास अल्टीमेटली, वो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए सॉल्व हो जाएंगी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अच्छा, नाउ अब हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रिलेटेड आता है आपके पास रिलेटेड टू ब्लॉक डायग्राम्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ब्लॉक डायग्राम इज़ गिवन और उसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, उसकी डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए वी विल सिंप्लीफाई द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, जस्ट सिंप्लीफाई द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई करें। अब इसके लिए हमें सबसे पहले डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस देखनी होगी। उन ट्रांसफॉर्मेशंस को किए बगैर हम लोग एकदम सारी ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें पार्ट्स बाय पार्ट्स या स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को उस डायग्राम्स को, जो ब्लॉक डायग्राम गिवन होगी उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। लाइक वन क्या है कि अगर टू ब्लॉक्स कैस्केड स्ट्रक्चर में है, कैस्केड में पता है लाइक आप लोग अगर सर्किट्स में देखें तो हमारे पास दो एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल रेजिस्टर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अगर टू ब्लॉक्स हैं, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, तो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज द कैस्केडेड कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कैस्केडेड कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अगर दो ब्लॉक्स इस तरह से हैं कि वो सीरीज में या कैस्केड स्ट्रक्चर में हैं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों के दोनों अल्टीमेटली क्या होंगे, इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दे बोथ विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर। ठीक है, G1 और G2 दो ब्लॉक्स थे और वो कैस्केड स्ट्रक्चर में थे और इसको हम लोगों ने अल्टीमेटली कैसे राइट कर देंगे, इनको एक ही ब्लॉक में ये शो कर देंगे, ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, कंबाइनिंग ब्लॉक्स इन पैरेलल, कि अगर टू ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये एक ब्लॉक ये आ रहा है और ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल पैरेलल, तो ये अगर पैरेलल में है टू ब्लॉक्स और यहाँ पे ये सम हो रहे हैं, तो इनको हम लोग अल्टीमेटली क्या कर देंगे, इन दोनों ब्लॉक्स को ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस साइन होता तो यहाँ पे माइनस साइन लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास टू ब्लॉक्स आ रहे हैं और इनको कैसे कंबाइन करेंगे, अल्टीमेटली वी विल शो हेयर विद वन ब्लॉक एंड इस ब्लॉक में क्या लिखेंगे, G1 प्लस G2। मतलब अगर पैरेलल में टू ब्लॉक्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। इफ द टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन देन द बोथ ब्लॉक्स विल बी कंबाइन। ठीक है, एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारे पास, that is if the two blocks are connected in the cascade configuration, then ultimately we will multiply these both blocks and we will replace these blocks by one block that having the value of G1 multiplied by G2. If the two blocks are connected in the parallel configuration, then we can combine both blocks, for example G1 plus G2. अभी तक हम लोगों ने ये देखी है दो ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं पूरी स्लाइड्स में, लेकिन उसको मैं आप लोगों को एक दफ़ा कंबाइन बता दूंगी ये सारी, ताकि वो एक दफ़ा अच्छा, ये है आपके पास रिडक्शन टेक्निक की ये थर्ड वन। थर्ड वन क्या है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें ब्लॉक डायग्राम में ये देख लिया, सबसे पहले ये देख लेना कि सिंपल वाली चीज़ें देख लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर टू ब्लॉक्स सीरीज में कनेक्टेड है, ये कहीं पैरेलल में है या कहीं फीडबैक में, उनको सॉल्व कर लिया। लेकिन सम टाइम उस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं कि हमें उस ब्लॉक डायग्राम को तब तक रिड्यूस नहीं कर सकते जब तक ये ब्लॉक जो है इसको कहीं अहेड और बिहाइंड मूव ना कर लें। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज दिस पॉइंट, द मूविंग ए समिंग पॉइंट बिहाइंड ए ब्लॉक। ठीक है,
मतलब अगर ये इस तरह से है आपके पास कि एक ब्लॉक है और ये यहाँ पे एक समिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इस ब्लॉक डायग्राम को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो हम लोग इस ब्लॉक को, फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक को इससे बिहाइंड मूव करना है या फिर समिंग पॉइंट कह लें। इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के बिहाइंड मूव करना है आप लोगों ने, बिहाइंड द ब्लॉक, ठीक है। मतलब पहले ऐसे था आपके पास ब्लॉक, दिस इज हेयर जी, दिस इज योर समिंग पॉइंट, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे नेगेटिव है अभी फॉर एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। समिंग पॉइंट में कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग इस को उठाएं और उठाकर क्या करें, इस ब्लॉक के बिहाइंड ले जाएं। मतलब ये ब्लॉक पहले आ जाए और ये समिंग पॉइंट चला जाए इसके बाद। तो तब क्या चेंज आएगी, तब ये चेंज आएगी कि ये वाला जो इसके साथ नेगेटिव फीडबैक में कनेक्टेड था, इस पॉइंट के साथ जी ब्लॉक भी ऐड कर देंगे। अगर आप दोनों इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फोकस करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि अगर हम लोग इस समिंग पॉइंट को यहाँ से उठा के इसके बिहाइंड मूव कर दें तो वो ब्लॉक तो आगे आ गया, ठीक है, अहेड चला गया। लेकिन क्या फ़र्क आया, सिर्फ डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पर हमारे पास जो फीडबैक में पास आ रहा था वहाँ पे भी सेम यही ब्लॉक, ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लॉक जी है तो आपने यहाँ पे भी, बेशक अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी है, मतलब सेम ब्लॉक आपके पास फीडबैक में कनेक्ट कर देना आप लोगों ने उस जी ब्लॉक को। ये भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे कंप्लीट एग्जांपल, उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे ये फोर्थ है, यहाँ पे इस पॉइंट में मिसिंग है। मूविंग ए समिंग पॉइंट बिहाइंड दिस ब्लॉक। अच्छा एक तो समिंग पॉइंट की हम लोगों ने बात की। अच्छा यहाँ पे ये फोर्थ नंबर है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये फोर्थ नंबर है। यहाँ पे मिसिंग में ये जो है ना, ये शो हो गई है कि ये थर्ड नंबर है, ठीक है। इसको आप लोगों ने काइंडली देख लेना है। थर्ड नंबर पे क्या था, मूविंग ए समिंग पॉइंट बिहाइंड ए ब्लॉक। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोर्थ वन। So this is the fourth one, moving a summing point ahead of a block। यहाँ पे हमारे पास कैसे है कि ये जो समिंग पॉइंट है ये इस ब्लॉक के बाद में है, लेकिन अब हमें अहेड मूव करना है, इससे पहले मूव करना है। तो अगर इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक से पहले शो करना है हमें, तो हमें इसके फीडबैक में जो आपके पास ये वाला कनेक्शन आ रहा है इसके साथ क्या करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने बिहाइंड मूव करना था हम लोगों ने वही सेम ब्लॉक यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दिया था इस फीडबैक पाथ के साथ। लेकिन अब क्या करेंगे, सेम का सेम वही ब्लॉक तो ऊपर शो हो रहा है, मतलब समिंग पॉइंट अब यहाँ पे आ गया और जी ब्लॉक यहाँ पे चला गया, लेकिन इसकी फीडबैक में अब हमें जी शो नहीं करना है, उस जो भी ब्लॉक होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेना है आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बी से इसको शो किया हुआ है कैपिटल बी से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/b आ जाएगा। अगर यहाँ पे इसको एच ब्लॉक से शो किया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एच, डेट इज द 1/h, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट्स अगर हम लोग उसको कलेक्ट करें, जिसको जो जितने भी पॉइंट्स, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन को भी हमने डिस्कस किया है, एक तो हमारे पास नंबर 1 इज कैस्केड वाला पॉइंट आ गया। सेकंड वन, अगर 2 ब्लॉक्स पैरेलल में हैं तो उनको कंबाइन कर देंगे। थर्ड वन क्या आ गया, अगर हम लोगों ने एक समिंग ब्लॉक है, समिंग जो पॉइंट है उसको मूव करना है बिहाइंड द ब्लॉक। अगर बिहाइंड द ब्लॉक मूव करेंगे तो उसके फीडबैक में वही सेम ब्लॉक जो पहले मूव हुआ है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने समिंग पॉइंट से वो अहेड मूव करना है तो उसके फीडबैक में क्या आ जाएगा, उस ब्लॉक का रेसिप्रोकल आ जाएगा।
ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये फिफ्थ है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देना, ये ना हो कि आप लोग बाद में मिसअंडरस्टैंड करें। वो थर्ड पॉइंट था, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ नंबर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मूविंग ए पिक ऑफ पॉइंट बिहाइंड अ ब्लॉक। अच्छा, जो दो पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया है सेम टेक्निक को, डेट इज एक समिंग पॉइंट है, उसको अहेड मूव करना है या बिहाइंड मूव करना है। इसी तरह से हम लोग लेंगे पिक ऑफ पॉइंट की बात करेंगे। पहले हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ब्लॉक डायग्राम को, तो ये मैंने दो इंपॉर्टेंट आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे, एक तो समिंग पॉइंट और एक हमारे पास है पिक ऑफ पॉइंट। पिक ऑफ पॉइंट क्या था कि जहाँ से डिफरेंट इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट पाथ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक x1 आ रही है तो वो आगे से उसी पाथ से डिफरेंट पाथ्स में लेते हुए वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो क्या होगा हमारे पास पिक ऑफ पॉइंट। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने इस पिक ऑफ पॉइंट को, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स कनेक्टेड हैं, अगर इस पिक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के बिहाइंड मूव करना है तो क्या करना है? ये देखो ना, अब ये पिक ऑफ पॉइंट यहाँ से उठा, यहाँ से उठ के ये आ गया इस जगह में, यहाँ से उठ के आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। अच्छा, अब इस पिक ऑफ पॉइंट के साथ क्या आ गया? वही सेम ब्लॉक जो है वो उसके रेसिप्रोकल में आ गया, ठीक है। मीन्स कि अगर पिक ऑफ पॉइंट को मूव करना है बिहाइंड दिस ब्लॉक, तो उसके फीडबैक में या फिर उसके साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा? एक वही सेम ब्लॉक उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दिस सिक्स पॉइंट, मूविंग ए ब्लॉक अहेड, सॉरी, मूविंग ए पिक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ए ब्लॉक, ठीक है। अब ये वाला पिक ऑफ पॉइंट है, लेकिन अब हमें क्या मूव करना है? इस पिक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक से पहले हम लोगों ने शो करना है। ये देखें, इस पिक ऑफ पॉइंट को क्या करना है? इस ब्लॉक से पहले लेके जाना है, ठीक है। तो उस पिक ऑफ पॉइंट के साथ जो है वो क्या आ जाएगी? सेम ये वाला ब्लॉक आ जाएगा उसके साथ। अच्छा, ब्लॉक को यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है इसके साथ, ठीक है ना। ये ना हो कि आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, जो भी इसका ऐसे पाथ आ रहा है ना, सेकंड इनपुट आ रही है, उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। अभी ये इसलिए बार बार उसको कह रही हूँ कि अभी सिर्फ उस ट्रांसफॉर्मेशन को या इन पॉइंट्स को माइंड में रखें। जब हम लोग कंप्लीट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वो अल्टीमेटली आप लोगों के माइंड में वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी दो ऑपरेशंस बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, दो ऑपरेशंस डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू समिंग पॉइंट, टू ऑपरेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू पिक ऑफ पॉइंट। अगर समिंग पॉइंट को हम लोगों ने बिहाइंड लेके जाना है ब्लॉक से, तो वो ब्लॉक एज इट इज क्या आ जाएगा? जी का जी आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने उस ब्लॉक से अहेड समिंग पॉइंट को लेके जाना है, लाइक द फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल में। ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल में है। अब ये देखें, मूविंग ए पिक ऑफ पॉइंट बिहाइंड अ ब्लॉक, अगर उससे बिहाइंड लेके जाना है तो तब उसका रेसिप्रोकल आएगा, और अगर उससे अहेड लेके जाना है मूविंग को, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा? उसका सेम एज इट इज ब्लॉक आ जाएगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट कर लें, शॉर्टकट मतलब पॉइंट्स बना लें इसके, ये पॉइंट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वरना चीज़ समझ नहीं आती। एक तरफ हम लिख लें दैट इज द समिंग पॉइंट, और इस तरफ हम लोग लिख लें पिक ऑफ पॉइंट, ठीक है। एक आ गया समिंग पॉइंट और सेकंड क्या आ गया हमारे पास? पिक ऑफ पॉइंट। अच्छा, एक और इसमें, अगर समिंग पॉइंट ने बिहाइंड जाना है, दो ही चीज़ें ना हमारे पास, बिहाइंड या अहेड, दो ही पॉइंट्स हैं, इन दोनों में दो दो पॉइंट्स हैं, एक तो बिहाइंड और अहेड। अगर समिंग पॉइंट ने जाना है बिहाइंड, ये देखें, ये जैसे कि वो, अब मैं पीछे बैक जाऊंगी तो ये सारा इरेज करना पड़ेगा, इसलिए वो अगर उसने बिहाइंड जाना है तो उसके लिए वो सेम ब्लॉक जो है ना, सेम ब्लॉक आ जाएगा इस फीडबैक के साथ। लेकिन अगर इस समिंग पॉइंट ने जाना है उस ब्लॉक से अहेड, तो क्या करना पड़ेगा? उसका रेसिप्रोकल ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर पिक ऑफ पॉइंट ने जाना है, पिक ऑफ पॉइंट ने कहाँ जाना है? अगर बिहाइंड जाना है, ये देखो ये वाला पॉइंट अगर जाना है बिहाइंड, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बिहाइंड के लिए क्या करेंगे इसमें पिक ऑफ पॉइंट में? रेसिप्रोकल लेंगे।
लेकिन इसमें अगर इसने अहेड जाना है पिकअप पॉइंट ने, तो वो सेम ब्लॉक उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, सेम ब्लॉक। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये एक दूसरे के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर समिंग पॉइंट ने बिहाइंड जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम ब्लॉक को कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर अब पिक ऑफ पॉइंट ने बिहाइंड जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके ब्लॉक के रेसिप्रोकल को हम लोग जो है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों भी एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। अभी ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बस इसमें एक थोड़ा सा इन पॉइंट्स पे भी फोकस करें। अच्छा, ये मैंने बताया कि ये नंबरिंग की आप लोगों ने चेंज कर लेनी है। दिस इज नॉट द थर्ड, दिस इज द फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। आफ्टर दैट इज एलिमिनेटिंग ए फीडबैक लूप। ठीक है, अभी हम लोगों ने देख ली डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम मूव कर रहे हैं कि फीडबैक अगर पाथ आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये हमें पता है कि अगर फीडबैक का क्या मतलब है, अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, अगर इस तरह का फीडबैक लूप है, ठीक है, जिसमें एक ब्लॉक फीड फॉरवर्ड पाथ में कनेक्टेड है, एक ब्लॉक जो है वो कनेक्टेड है फीडबैक पाथ में, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको कैसे शो करेंगे, इसकी हम लोग ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं। दैट इज किसके इक्वल हो जाएगा, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस नेगेटिव g ऑफ h। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सॉल्व फीडबैक लूप। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है हमारे पास कि फीडबैक में हमारे पास ये जो वैल्यू होती है गिवन नहीं होती। ये सपोज कर लें कि ये यूनिटी के इक्वल है, 1 के इक्वल है, मतलब जो फीडबैक में एच ब्लॉक लगा हुआ है इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती। ये सिंपल एक ऐसे शो कर देते हैं लाइन को। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एच की वैल्यू किसके इक्वल है, फीडबैक जो ब्लॉक है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर ये 1 के इक्वल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगी, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस नेगेटिव g, क्योंकि h हमारे पास उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद सेकंड सॉरी ये हो गया सेवंथ, ये वाला हमारे पास हो गया सेवंथ पॉइंट। एंड दिस इज द एट्थ ट्रांसफॉर्मेशन। एट्थ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि अगर स्वैप कर दें विद टू नेबरिंग समिंग पॉइंट्स, मतलब अगर ऐसे हमारे पास टू समिंग पॉइंट्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो हम लोग इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं इजीली। मतलब इस पॉइंट को यहाँ ले आए, इसको उठा के यहाँ ले आए। सब टाइम हमें ऐसी भी जरूरत पड़ती है। अभी जब आप लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो आप लोग के माइंड में खुद ब खुद ये सारे के सारे पॉइंट्स आते जाएंगे जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो इन दोनों समिंग पॉइंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया है कि बी ए की जगह पे आ गया और ए बी की जगह पे आ गया, लेकिन इसमें और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब इन दोनों को इजीली हम लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वैप कर सकते हैं, इनकी पोजीशंस को स्वैप कर सकते हैं इजीली। ओके, ये हो गई। अब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हम लोगों ने देख ली, ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ये अच्छा, ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है पूरी इसमें, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। एक ही पेज पे पहले ये लिख लें सारे पॉइंट्स को, इन सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को। एक ट्रांसफॉर्मेशन है कैस्केड्स कॉन्फ़िगरेशन की, उसके बाद है पैरेलल सेकंड वन, एंड थर्ड वन जो है, थर्ड वन और फोर्थ ये दोनों के दोनों रिलेटेड है समिंग पॉइंट से। समिंग पॉइंट को अहेड मूव करना है, ये बिहाइंड मूव करना है। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ एंड सिक्स जो है दैट इज रिलेटेड टू पिक ऑफ पॉइंट, के पिक ऑफ पॉइंट को बिहाइंड मूव करना है या अहेड मूव करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वह है रिलेटेड टू एलिमिनेशन ऑफ, अगर क्लोज लूप एक हमारे पास पाथ बन रहा है तो उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद उसने बताया कि अगर यूनिटी फीडबैक गिवन है, मतलब अगर फीडबैक ब्लॉक जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 की इक्वल गिवन है, तो तब हम लोगों ने उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर टू समिंग पॉइंट्स हैं नेबरिंग में, मतलब दो नेबर्स हैं, तो उनको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, स्वैप। मतलब ए को बी की जगह पे और बी को ए की जगह पे उसको इजीली स्वैप कर लेंगे उनकी पोजीशंस को। अच्छा, अब हम लोग मूव करते हैं इसकी एग्जांपल्स को, ताकि हम आप लोगों को आइडिया हो कि ये बेसिकली कैसे सॉल्व करने हैं इनको। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखें एग्जांपल है इसमें, एग्जांपल 5 के नेम से। अब ये देखें, इसमें ये आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही गिवन होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ब्लॉक डायग्राम गिवन होगी एंड क्वेश्चन क्या होगा इस पर, सिंप्लीफाई द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कुछ बुक्स में यहाँ पे क्रॉस साइन है, कुछ में नहीं है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये समिंग पॉइंट है। ठीक है,
अच्छा, ये ब्लॉक डायग्राम है। अब यहाँ पे दिमाग बिल्कुल सोच रहा होगा, ये थोड़ा बहुत सोच रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपली सबसे इजीएस्ट स्टेप्स को देखें। अपने दिमाग में वो जो 9 आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशंस बताई है ना, उनको 1 से लेके स्कैन करना स्टार्ट करें। स्कैन कैसे करेंगे? मतलब सबसे पहले 1 को देखो। 1 क्या था? कैस्केड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस उस ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ इंप्लीमेंट करो। कोई ब्लॉक ऐसा नजर आ रहा है जो कि कैस्केड में है, हम लोग उसको सॉल्व कर लें, ट्रांसफॉर्मेशन 1 को यूज कर लें, ठीक है। मतलब हर ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप स्कैन करते जाना है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि ये जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनको एक पेज पे राइट डाउन कर लें, ताकि आप लोगों के माइंड में बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। एक ही रूल्स को, वो जो रूल्स की एक लिस्ट है ना, उसको फॉलो करते जाएं और वो रूल्स स्टेप बाय स्टेप उस डायग्राम पे इम्प्लीमेंट करते जाएं। अदरवाइज ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम लोगों ने अपने माइंड में लेके आना है कि जी ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 क्या थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास कि अगर 2 ब्लॉक्स कैस्केड स्ट्रक्चर में हैं तो उनको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है कैस्केड में, देखते हैं। ओ ये देखो, ये स्कैन किया तो ये क्या पता चला कि ये 2 ब्लॉक्स थे जो कि ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं एक ब्लॉक के साथ, और उस ब्लॉक को क्या शो कर सकते हैं? G1 G4, ठीक है। लाइक ये देखो स्टेप 1, ओके। जितने भी कैस्केड ब्लॉक्स थे ट्रांसफॉर्मेशन 1 को यूज करते हुए उनको हम लोगों ने क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया, सॉरी। अच्छा, सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। अब हम लोग स्कैन करेंगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 को। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास कि हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास कोई ब्लॉक्स ऐसे हैं जो पैरेलल में आ रहे हैं। ये देखें, ये 2 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, ये आपस में पैरेलल में और ये एक पॉइंट पे ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि इन दोनों ब्लॉक्स को कंबाइन कर लेंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास G2 प्लस G3, ओके। हम लोगों ने अभी तक 2 ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है। कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट किया है? 2 ब्लॉक से हमें नजर आ गया कि ये 2 कैस्केड में है, उन दोनों को हम लोगों ने एक ही ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया। वो ब्लॉक क्या था? G1 मल्टीप्लाई बाय G4। सिमिलरली 2 पैरेलल ब्लॉक्स हमें नजर आ गए, उन दोनों के दोनों ब्लॉक्स को हम लोगों ने कंबाइन कर लिया और उनको एक ब्लॉक से रिप्लेस कर लिया, दैट हैविंग द वैल्यू ऑफ G2 प्लस G3। अब ये थोड़ी सी आ गया, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने क्या काम कर लिया? एक तो इसको सारा का सारा सॉल्व कर लिया और यहाँ पे G1 और G4 की जगह पे क्या आ गया? G1 और G4। अब हमें मजीद कुछ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी कफ पॉइंट हमें इधर उधर नहीं लेके जाना पड़ना। अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें इजीली तो हमारे पास ये कैसी डायग्राम बन गई है। यहाँ पे अगर मैं दोबारा बनाऊंगी तो इट विल टेक टाइम। देखो ये आ रहा है, ओके। यहाँ से ये देखो, अब ये वाला पाथ आ जाएगा। एक तो यहाँ पे क्या आ गया? G1 G4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया? H1, ठीक है। और यहाँ चला गया इसके साथ, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? जो पैरेलल वाला ब्लॉक था G3 प्लस G2, यहाँ पे आ गया C। और C के बाद ये आ गई एक मेजर लूप जो यहाँ पे जा रही है एक और समिंग पॉइंट के साथ, ठीक है। अब मतलब ये चीज़ इस तरह से आ गई सिंप्लीफाई होने के बाद। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा, कुछ और नजर आ रहा है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें सिर्फ लूप्स आ रही हैं। अब सिर्फ बच गई, क्या बच गई? लूप्स बच गई। सबसे पहले माइनर, ये देखो, इसको हम लोग कहते हैं, ये वाली जो लूप है ना, ये मेजर लूप है, और ये वाली अंदर वाली जो लूप है ये हमारे पास क्या है? माइनर लूप। तो सबसे पहले हम इस माइनर लूप को क्या कर लेंगे? इस पे इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये फीडबैक में आ रही है तो इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये उन्होंने बताया है कि
ये वही वाले ब्लॉक, यहाँ पे इसने पार्ट पे पार्ट बताया है, ठीक है। G1 G4 और H1 ये दो थी हमारे पास, ये वाली जो है ये एक फीडबैक लूप बन रही है। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फीडबैक को सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल रूल, इसका ट्रांसफर फंक्शन लेंगे। ट्रांसफर फंक्शन कैसे लेंगे, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस नेगेटिव जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अब देखना ये है कि ये नेगेटिव फीडबैक है, ये पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे जी ऑफ एस का ब्लॉक कौन सा है, ये देखें, ये है हमारे पास जी ऑफ एस का ब्लॉक, और यहाँ पे है ये एच ऑफ एस का ब्लॉक। जी ऑफ एस के ब्लॉक की वैल्यू किसकी इक्वल है, G1 G4। अच्छा, यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस G1 G4, और एच ऑफ एस ब्लॉक की वैल्यू किसकी इक्वल है, यहाँ पे H1 की इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे सॉल्व हो गई, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने वो इक्वेशन लिखनी है और उस इक्वेशन में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो ये हमारे पास ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाली जो माइनर लूप है, दिस माइनर लूप, स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने उस माइनर लूप को सॉल्व कर लिया। अच्छा, उसने बताया है कि जितनी भी यहाँ पे हमें यहाँ पे शिफ्टिंग वाली, ज़रूरी नहीं है कि अब सारी के सारी जो टेक्निक्स हैं वो एक एग्जांपल में इम्प्लीमेंट होंगी। हमें ये देखना है, मैं यही कह रही हूँ कि अपनी सारी जो स्कैन करते जाएंगे डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस को, और ये देखते जाएंगे कि हमारी एग्जाम्पल के लिए कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो हेल्पफुल होंगी। पहले हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 थी, वो भी हमारे इंप्लीमेंट हो गई, 2 भी इंप्लीमेंट हो गई, लेकिन जो बाकी जितनी समिंग पॉइंट को ऐड लेके जाना है, पिकअप पॉइंट को मूव करना है, ये वो, इन चीज़ों की भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ज़रूरत किसकी थी कि हम लोगों ने इस फीडबैक को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे जो माइनर फीडबैक लूप थी वो सॉल्व हो गई। अच्छा, अभी जब माइनर फीडबैक लूप को हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ये अब ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों के आगे कैस्केड में आ गए, ठीक है। मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखो, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या आ गई, ये सिर्फ एक और बन गई मेजर लूप, ठीक है। अब सिर्फ एक और लूप रह गई, ये आउटसाइड, ये इनर लूप को सॉल्व किया था, ये आउटसाइड लूप रह गई हमारे पास। अब इस स्टेप को भी हम लोग क्या कर लेंगे, या तो इसको यहाँ तक सॉल्व कर लें, इसको पूरा सॉल्व करें, दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अब यहाँ पे जी ऑफ एस की वैल्यू पुट करें जो कि ये है, और एच ऑफ एस की वैल्यू दैट इज इक्वल टू एच ऑफ 2। अब आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों का टास्क इस एग्जाम्पल में ये है कि आप लोगों ने मुझे अल्टीमेटली बताना है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे इस फीडबैक लूप को सॉल्व करना है। इस फीडबैक लूप को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ऑफ एस, और यहाँ पे आ जाएगा सी ऑफ एस। अब इस चीज़ को पूरी को सॉल्व करके आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, ठीक है क्लास। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी है, एग्जांपल नंबर 5, जिसमें हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम गिवन थी और उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई किया। डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करने के बाद ये देखा कि हम लोगों ने कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन ये रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं। एक तो कैस्केड वाला, सेकंड वन पैरेलल वाला, और थर्ड वन हमारे पास क्या है, फीडबैक में लूप्स को कैसे सॉल्व करना है। इन्हीं 3 ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हुए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। और जो टास्क आप लोगों के लिए है वो ये है कि आप लोगों ने इसमें लास्ट में इसने सॉल्व नहीं किया हुआ इसको, ठीक है। तो इस फीडबैक लूप को आप लोगों ने सॉल्व करना है। जस्ट उस ट्रांसफर फंक्शन में वैल्यूज पुट करें और मुझे सिंप्लीफाई करके बताएं कि इसको क्या क्या वैल्यू आएगी इसकी। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल 6 वही है कि पहले इसको सॉल्व करें। अब ये देखें, एग्जाम्पल 6 क्या बता रही है कि इसमें हम लोगों ने फोर्थ सिस्टम represented by the following diagram determine open loop transfer function, feedback transfer function, ठीक है। उसने एक फीड यहाँ पे एक गिवन है ब्लॉक डायग्राम, दिस वन,
इस ब्लॉक डायग्राम पे ये सारे के सारे पैरामीटर जिनकी वैल्यूज आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उन ट्रांसफर फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ये सिंप्लीफाई, हमें क्या चाहिए था, ये वाली सारी की सारी वैल्यूज हम लोग तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास डायग्राम ऐसे हो, ठीक है ना, एच ऑफ एस। लेकिन अब इस डायग्राम को हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले इसको हम लोग इस फॉर्म में लेके आएंगे और अल्टीमेटली इस पे ये सारे पैरामीटर्स अप्लाई करेंगे। कैसे लेके आएंगे इस फॉर्म में, ये देखें। सबसे पहले ये देखेंगे के और 1/s जो है वो कैस्केड में है, तो ये क्या आ जाएगा, k डिवाइडेड बाय s+1। ये ब्लॉक ऐसे आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ रही है प्लस, यहाँ पे है नेगेटिव साइन, और दिस वन, और यहाँ पे एक और ब्लॉक है जो कि s है। अच्छा, अब इसको हम लोग कर देंगे सॉल्व फीडबैक में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली, क्या आ जाएगा, जब इस फीडबैक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास k ओवर s 1 + k + 1, ठीक है। मतलब पहले इस फीडबैक लूप को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली ये वाला ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, और प्लस नेगेटिव k s+1, सॉरी s ब्रैकेट्स 1 + k + 1, और यहाँ पे इसके बाद फीडबैक में क्या आ रहा है, 0.1, ठीक है। सिर्फ ये रह जाएगी हमारे पास जब उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आप लोगों ने इसको कंसिडर कर लेना है कि ये जी ऑफ एस के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, एच ऑफ एस के। अब इन दोनों को यूज करते हुए आप लोगों ने ये सारे के सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लेने हैं जो हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए हैं। इसमें जहाँ भी कंफ्यूजन होगी वो आप लोग मेरे से इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और मेरे से पूछ लेंगे कि इसमें हमारे यहाँ में यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये देखें, इसको यहाँ सॉल्व किया, अल्टीमेटली ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और इसके ये सारे के सारे, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे साथ ही है। तो पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और अल्टीमेटली ये हमारे पास इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे, और उसके बाद हम लोग ये सारी की सारी इक्वेशंस की वैल्यूज को निकालते हुए इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये एग्जाम्पल 7 है, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है। अब हम मूव करते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। ये है आपकी टेक्स्ट बुक में से, टेक्स्ट बुक जो आप लोगों की है ओगाटा, उसका ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल है 2.1। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ इसको सॉल्व करते हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रही अभी। अब ये देखें ना, तो हम इन दोनों ब्लॉक्स को कैस्केड में कर पा रहे हैं, यहाँ भी फीडबैक की भी कुछ समझ नहीं आ रही, सारे के सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं। मतलब अभी अगर हम लोग एज इट इज़ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एज इट इज़ इस डायग्राम पे इम्प्लीमेंट करें तो हम लोग कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कुछ समझने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस समिंग ब्लॉक को उठाएं, ठीक है, इस समिंग ब्लॉक को उठा के हम लोग ले जाएं इस ब्लॉक के अहेड, इस पॉइंट पे ले जाएं, ठीक है।
इस पॉइंट पे, मतलब इस ब्लॉक से पहले ले जाएं, अगर इस समिंग पॉइंट को उठाकर इस ब्लॉक से पहले ले जाएं तो अल्टीमेटली ये वाले दोनों ब्लॉक्स के आ जाएंगे, कैस्केड में आ जाएंगे। ठीक है, उसको हम सॉल्व कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर अगर उठा के लेके जाना है तो मैंने क्या बताया था कि ये जो आपके पास आ रही है इसके साथ समिंग पॉइंट में अगर आपने ब्लॉक से अहेड मूव करना है तो उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल अटैच कर देना। मतलब ये वाली जो ब्रांच आ रही है इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा ब्लॉक था जिसके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, G1 की, तो ये क्या आ जाएगा H2 डिवाइडेड बाई G1। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी इसको कैसे किया है। अगर नेक्स्ट मूव को देखें, नेक्स्ट स्लाइड को देखें, ये देखें। ठीक है, मूविंग द समिंग पॉइंट अहेड ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, इस समिंग पॉइंट को यहाँ से उठाया, पहले हमारे पास था इस पॉइंट पे, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी ये साथ में लिखी है। पहले ये पॉइंट था यहाँ पे, हम लोगों ने इस समिंग पॉइंट को यहाँ से उठाया और यहाँ ले गए। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके फीड फॉरवर्ड पाथ में आप लोगों ने ब्लॉक को अटैच नहीं करना। जो इसका दूसरे वाला पाथ है ना आपके पास, दूसरी फीडबैक के साथ लगा हुआ है, उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, इस ब्लॉक के साथ जिस ब्लॉक के आगे पीछे उसको मूव कर रहे हैं। ये देखें, अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मूव तो हमने कर दिया, लेकिन अब क्या पता कि कौन सा हम लोगों ने ब्लॉक जो है वो रेसिप्रोकल में लेना है। जिस ब्लॉक से अहेड या उसके बिहाइंड मूव कर रहे हैं सेम उस ब्लॉक को अटैच करना है या फिर उस ब्लॉक का रेसिप्रोकल अटैच करेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी मूवमेंट पे। मतलब अगर इस समिंग पॉइंट को अगर इस ब्लॉक से अहेड मूव किया है तो उसके साथ रेसिप्रोकल में अटैच कर देंगे। अगर इसके बिहाइंड मूव किया होता तो सेम का सेम वही ब्लॉक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता। अब हम लोगों ने क्या किया है, इस समिंग पॉइंट को उठाया और उठाकर हम लोग ले गए हैं इस ब्लॉक से पहले, तो इस पाथ के साथ हम लोगों ने क्या अटैच कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसके रेसिप्रोकल को, मतलब 1/G1 को। तो अल्टीमेटली इस पाथ के साथ वैसे एक ब्लॉक लगा हुआ था H2, तो ये क्या हो जाएगा H2 डिवाइडेड बाय G1। ठीक है, अब जब इस ब्लॉक को मूव किया इससे पहले तो हमें थोड़ी सी कुछ उम्मीद नजर आई कि नहीं हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकते हैं ब्लॉक डायग्राम को। और वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो है नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कैस्केड। मतलब अब ये दो दो ब्लॉक्स को, ये वाले जो दो ब्लॉक्स हैं इनको इजीली हम लोग कैस्केड में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, G1 और G2 को कैस्केड में सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जरा मूवमेंट देखो, समझ आ रही है। अब हम लोग यहाँ तक तो ले आए अपने क्वेश्चन को, मतलब एक समिंग पॉइंट को मूव करवाया तो एक पॉइंट हमें मिला कि हम लोग इन दो ब्लॉक्स को कैस्केड में सॉल्व, लेकिन अब फिर हम यहाँ पे स्टक हो गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम मजीद इस डायग्राम में क्या कर सकते हैं। तो अब उस स्टक हुई सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखेंगे कि मजीद स्कैन करेंगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस को, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को अब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो याद होगी लास्ट वाला पॉइंट। ये देखो, अगर हम लोग इसको फीडबैक में भी सॉल्व करना चाहें ना इस पॉइंट को, इफ वी वांट टू सॉल्व इट इन द फीडबैक, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये वाला समिंग पॉइंट यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब अगर सपोज इस समिंग पॉइंट को उठा के हम इससे पहले ले जाएं तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इसको एक फीडबैक में सॉल्व कर सकते हैं। अब वो याद होगा जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखी थी कि अगर टू समिंग पॉइंट्स है नेबरिंग में तो हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वही काम कर रहे हैं, इसको उठा के इधर लेके जा रहे हैं, इसको उठा के इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यही काम किया। ये देखें जी, उस समिंग पॉइंट को उठा, अच्छा और कुछ चेंज नहीं आनी। ये वाली जो ब्रांच आ रही है ये भी इधर की इधर रहनी है, बाकी सब अटैचमेंट्स ऐसे रहनी है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की, हम लोगों ने पोजीशंस को स्वैप कर देना है। अब जब पोजीशंस को स्वैप किया तो ये देख लिया हम लोगों ने ये पॉइंट कि हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व
दिस फीडबैक लूप। अब इस लूप को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे हमें पता है कि पॉजिटिव फीडबैक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस। ओके, इसको आप लोग देखें जरा, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। ओके क्लास, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इसको हम लोगों ने स्वैप कर दिया। स्वैप करने से हमें ये एक नज़र आया कि हम लोग इसको क्लोज लूप फीडबैक में सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जब इसको हम लोगों ने क्लोज लूप फीडबैक में सॉल्व किया तो ये ब्लॉक हमारे पास ऐसे हो गया, ये रिप्लेस कर दिया उस ब्लॉक को, हम लोगों ने सॉल्व किया। अच्छा, अब हम लोग और क्या कर सकते हैं? उस माइनर लूप को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मजीद क्या कर सकते हैं, ये देखें कि ये वाले जो दो ब्लॉक्स आ रहे हैं, ये हम लोग एक मिनट एनोटेट करेंगे तो अच्छा, ये हम लोग दो ब्लॉक्स से इसको हम लोग कैस्केड में सॉल्व कर लेंगे। अगेन कैस्केड में सॉल्व कर लेंगे, ये G3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब G3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये वाला भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाला ब्लॉक, ये दोनों हम लोग कंबाइन कर देंगे और कैस्केड में सॉल्व हो गया, ठीक हो गया जी। अब लास्ट पॉइंट क्या है कि ये दोनों जो आ रहे हैं, सॉरी ये दिस वन, अब ये एक और लूप बन रही है हमारे पास। इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर मेजर फीडबैक लूप को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये जो सॉल्विंग वाले स्टेप्स है ना, ये आप लोगों ने इसको वेरीफाई कर लेना है और इसको आप लोगों ने खुद से सॉल्व करके देखना है, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं देखेंगे, क्योंकि इसको कोई ऐसा नहीं है कि इसको आप लोग याद कर लेंगे इन पॉइंट्स को। जब तक आप लोग उस ट्रांसफॉर्मेशन में वैल्यूज को ऐड करके नहीं देखेंगे, तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, पहले इसकी माइनर लूप्स को सॉल्व कर लिया, उसके बाद इसकी मेजर लूप को सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर डैट है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखें कुछ समझ आ रही है किसी पॉइंट की? कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना। तो ये दो कैस्केड में सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से एक ब्रांच आ रही है, ना ही इनको फीडबैक में सॉल्व कर सकते हैं ये वाली ब्रांच की वजह से। और मतलब समथिंग कुछ ना, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना कि जब हम लोग कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे हैं, ना ही कोई कैस्केड में, ना ही कोई पैरेलल में, ना ही कोई फीडबैक पाथ को सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि कोई मूवमेंट करानी पड़ेगी, मतलब किसी ब्लॉक को आगे पीछे, ये समिंग पॉइंट को, ये पिकअप पॉइंट को हमें मूव करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि कोई कुछ ऐसा हम लोग करें। ये वाली जो है पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये वाला पिकअप पॉइंट, ये हमारे लिए कर रहा है डिस्टर्बेंस क्रिएट। इस पिकअप पॉइंट को उठाकर हम ले जाते हैं इस ब्लॉक से पहले, मतलब इस पॉइंट पे अगर ले जाएं, इस ब्लॉक से पहले ले जाएं। अगर पिकअप पॉइंट को आपने अहेड मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा?
देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखें, ये पिक ऑफ पॉइंट लिया यहाँ से ए, पहले था इस पॉइंट पे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब ये देखें जरा, इस पिकअप पॉइंट को यहाँ से उठाया, ए से यहाँ से मूव करा दिया इस ब्लॉक से पहले, ठीक है। पिक ऑफ पॉइंट को ए को मूव करवा दिया G2 ब्लॉक से पहले। मैंने क्या बताया था, अगर G2 ब्लॉक से पहले मूव करना है तो उसके फीड फॉरवर्ड पाथ में नहीं, इसका जो दूसरी ब्रांच है उसके साथ क्या आ जाएगा, वही वाला सेम ब्लॉक अटैच कर देंगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने इसमें क्यों रेसिप्रोकल नहीं लिया, क्योंकि इसके पॉइंट ही ऐसे है कि अगर इसमें अहेड मूव करना है तो वो सेम ब्लॉक आएगा, अगर बिहाइंड मूव करना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल वाला ब्लॉक आ जाना था, ठीक है। ये पिक ऑफ पॉइंट की ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड है। तो अगर हम लोगों ने इस पिक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक से अहेड मूव करना है, इस ब्लॉक से अहेड मूव करना है, तो हमें इसकी इस ब्रांच में नहीं, इसकी जो सेकंड ब्रांच है उसके साथ वही सेम का सेम ब्लॉक क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोगों के पास क्या बन गया, ये वाली चीज यहाँ से निकल गई, यहाँ आ गई। इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज तो यहाँ से खत्म हो गई। जब ये वाली चीज यहाँ से खत्म हो गई तो G2 और G3 दोनों के दोनों क्या आ गए हमारे पास, कंबाइन हो गए, मतलब ये कैस्केड में आ गए, क्योंकि ये वाली ब्रांच तो यहाँ से आउट हो गई। तो जब ये वाली ब्रांच यहाँ से आउट हुई तो क्या हुआ, कंबाइन कर लेंगे इन दोनों को, कैस्केड में कर लिया तो वो क्या आ गया, G2 प्लस G3 आ गया। अब G4 और यहाँ पे G2 प्लस G3, ये दोनों के दोनों एक पिक ऑफ पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ऐड हो रही है, क्या बन गया, ये बन गई हमारे पास पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इस पॉइंट में इसको अगर रिप्लेस करें इस सारी की सारी डायग्राम को, तो यहाँ पे क्या आ गया, G4 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाय G3, सॉरी G2, यस G2 मल्टीप्लाई बाय G3, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने पिक ऑफ पॉइंट को ए से बी पोजीशन पे ले गए, तो वो जो दो ब्लॉक्स थे G2 और G3, वो दोनों के दोनों ब्लॉक्स क्या हुए, कैस्केड में आ गए, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर हम लोगों ने देखा कि ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है और उन दोनों ब्लॉक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने इस पूरी जो एलिमिनेट किया उस लूप को, और उसको किससे रिप्लेस कर दिया, G4 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाय G3। ओके नेक्स्ट, ठीक है। ये वाला पॉइंट जहाँ पे इसको हाईलाइट किया है, ये आप लोगों ने काइंडली, ये वाली लूप बनी थी, ठीक है, ये वाली लूप है, इसको हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये हो गई सॉल्व। ओके क्लास, अब हम लोग क्या करेंगे, मूविंग द पिक ऑफ पॉइंट बी। अब आहिस्ता 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 इसको करके पीछे लेके जाएंगे, बिहाइंड द, अच्छा अब ये वाला पॉइंट आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमारे पास क्या रास्ता है, कुछ समझ आ रहा है। अब वो जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में होता था ना, रास्ता तलाश करें, सिमिलरली यहाँ पे भी वही है। इस ब्लॉक डायग्राम में क्या वे है, क्या सॉर्टिंग वे है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखो, जब तक ये पॉइंट यहाँ पे है, हम लोग इसको क्लोज लूप में सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको कैसे करेंगे, इसको अगर पिक ऑफ पॉइंट को इस बी से उठाएं, इस बी से उठा के यहाँ मूव कर दें, ठीक है, या और कुछ क्या हो सकता है।
G1 से बियॉन्ड ले जाएं इसको। ओके क्लास, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट है हमारे पास, अब अगर इसको यहाँ भी मूव नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। इसको हम लोग बी पॉइंट को उठाएंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से उठा के इस ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बियॉन्ड ले जाएंगे। मतलब इसको यहाँ से उठाया, उठा के इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके हम लोग तकरीबन इसके साथ अटैच कर देंगे इसको। ये देखो यहाँ से उठाया ये, और यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा कि जो उसके साथ दूसरी ब्रांच आ रही है उसके साथ क्या आ जाएगा, जब पिक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से बिहाइंड मूव करना है तो ये इसके रेसिप्रोकल में अटैच हो जाएगा। मतलब 1 डिवाइडेड बाय, इस ब्लॉक के आगे पीछे मूव कर रहे हैं, इसके बिहाइंड मूव कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय G4 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाय G3। ठीक है, उसी पिक ऑफ पॉइंट को उठाया और उस पिक ऑफ पॉइंट को करने के बाद हम लोगों ने इसको मूव कर लिया, इस ब्लॉक के बिहाइंड मूव कर लिया। ठीक है, इसके बिहाइंड ये देखें ये वाली लूप बन गई, और अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इस लूप को सॉल्व कर लेंगे। ये वाली लूप जो है ये हमारे पास आ रही है फीडबैक में। ठीक है, ये वाली लूप सॉल्व कर लेंगे, ये वाली लूप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर फीडबैक रूल को अप्लाई करेंगे, फीडबैक रूल को अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर दैट इसको सॉल्व कर ले, ये रिप्लेस किससे होगी, G4 प्लस G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस H2 मल्टीप्लाई बाय G4 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाय G3। और उसके बाद हम लोग ये वाली अगेन एक और लूप बन जाएगी। अब ये जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, दिस वन दिस ब्लॉक और ये वाली जो हम लोगों ने लूप सॉल्व की, ये दोनों आपस में कैस्केड में आ जाएंगे। इनको कैस्केड में सॉल्व करने के बाद अगेन हम लोग सॉल्व कर लेंगे ये एक फीडबैक लूप में। ठीक है, क्योंकि ये अगेन एक फीडबैक लूप बन रही है, इसको फीडबैक लूप में सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास ट्रांसफर फंक्शन। अगेन ये एक बन गई एक मेजर फीडबैक लूप आ गई, इसको दोबारा से वही रूल अप्लाई करते हुए हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास अल्टीमेटली इसके आ गया ट्रांसफर फंक्शन वो किसके इक्वल आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाली लूप को, जब इस वाली लूप को हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये इसका आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने ये करना है कि ये एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल अभी तक मैंने 4-5 एग्जाम्पल देख लिए कि एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6, उसमें एक तो डिफरेंट जो आप लोगों ने रेशियोज निकालने हैं, एक तो वो वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, वो वाली दोनों एग्जाम्पल वो है एग्जाम्पल 5 और 6। आगे जो एग्जाम्पल 8 है और 9 है, ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों ने एक पेज लेना है, एक पेज पे लेके स्टेप बाय स्टेप
डायग्राम भी दोबारा से बनाते जाना है और उसके सारे स्टेप्स को सॉल्व करते जाना है, और अल्टीमेटली ये वाले जो ट्रांसफर फंक्शंस हैं ये आपको मिलने चाहिए। इनके आंसर्स यहाँ पे गिवन है, रूल्स मैंने सारे बता दिए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए फिलहाल ये वाली 2 एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो एग्जाम्पल्स मैं जितनी करवा रही हूँ ये सब स्टूडेंट्स के पास पेजेस पे सॉल्व होने चाहिए अपने रजिस्टर्स में। तो मैं आप लोगों से किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ कि कौन सा रूल अप्लाई किया है, कैसे किया है, या फिर मुझे शो करवाएं वो पेजेस, तो वो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को मुझे वो बताना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन बल्कि 2 ज़्यादा टफ थे, या आगे ईजी हैं आपके पास। ठीक है, ये आगे आप लोगों ने ये देख लेने हैं कि इन पॉइंट्स को हम लोग कैसे करेंगे। तो आपका जो टास्क है वो ये है कि ऑलमोस्ट अभी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने की हैं, 2 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोगों ने इससे पहले अभी मशीन वाला नहीं करेंगे, सिर्फ स्लाइड नंबर स्लाइड नंबर 56 तक ये बन रही है आपकी एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल नंबर 17 तक आपने जो एग्जाम्पल्स है ना इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कल हम लोग मजीद इसमें से 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे। आज वाली डिस्कशन जो है वो इसको हम लोग कल करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लें ब्लॉक डायग्राम के। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि जो 2 एग्जांपल्स अभी मैंने करवाई हैं आप लोगों को, वो आप लोगों ने कम्प्लीटली उनको गो कम्प्लीटली, ऐसे नहीं है कि बस ठीक है ये थोड़ा सा देख लिया ऐसे होगा, ऐसे नहीं है। सब लोगों ने रिटर्न उसको करना है, पेजेस पे सॉल्व करना है, और मुझे उसका ट्रांसफर फंक्शन बताना है अल्टीमेटली कि क्या ट्रांसफर फंक्शन आएगा, कैसे निकालनी है वैल्यूज। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स, कल वाली क्लास में हम लोग इसकी डिस्कशन भी करेंगे इस लेक्चर की। आज आप लोग लेक्चर के टाइम में बैठ के ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व करें, और उसके बाद हम लोग कल इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसकी, और मजीद इसमें से 2 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। और इस वीकेंड पे बैठ के अगली एक्टिविटी होगी कि आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम का कम्प्लीटली सारा, जितनी भी आपको एग्जाम्पल स्लाइड्स में गिवन है, उन सारे एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने सॉल्व करना है। और इंशाल्लाह मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोगों को मंडे को इसका कोई ना कोई टेस्ट या कोई ना कोई क्विज रखेंगे हम लोग ब्लॉक डायग्राम को, ताकि मैं ये देखूँ कि आप लोगों ने कितनी को इसकी प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि ये एक्टिविटी हमें साथ साथ रखनी पड़ेगी क्विज की, या फिर ताकि इसके बगैर समझ नहीं आएगा आप लोगों को। क्योंकि अभी तो हम लोगों के पास ऑनलाइन इंटरेक्शन है, अभी बोर्ड भी अवेलेबल नहीं है, मतलब इस पर थोड़ा समझाना ज़रा, या आप लोगों की क्या फीडबैक आ रही है उसको देखना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ब्लॉक डायग्राम्स को देखते हुए, तो ये बगैर प्रैक्टिस के एक तो ये आनी भी नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने ऐसे करना है कि आज तो ये जितने क्वेश्चन आज मैंने करा लिए उनकी प्रैक्टिस करें, आगे फिर जो डिस्कस करेंगे वीकेंड में बैठ के सारी ब्लॉक डायग्राम्स को सॉल्व करें। और मंडे को इंशाल्लाह, मंडे या ट्यूसडे वाले दिन जब भी हमारी क्लास होगी, या मे बी मंडे वाले दिन, मैं कोई ना कोई आप लोगों की क्विज की एक्टिविटी लाजमी रखूंगी ब्लॉक डायग्राम की। चले अभी इस लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं, और आप लोगों ने इसको अभी प्रैक्टिस कर लेना। ओके।